अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाई शुड वी स्टडी इकोनोमेट्रिक्स। तो बड़े सिंपल से चार आंसर हैं इसके कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो रिसर्च की बेस है। आजकल जो है वो इकोनोमेट्रिक्स के बगैर जो मैनेजमेंट साइंसेज हैं, जो कंप्यूटर साइंसेज हैं, जो सोशल साइंसेज हैं, आपकी रिसर्च को जो है वो रिलायबिलिटी नहीं मिलती जब तक आप इकोनोमेट्रिक्स का कोई एनालिसिस जो है वो अप्लाई नहीं करते अपने डाटा के ऊपर, और उसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ नहीं करते, अपने हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते, अपनी थ्योरीज टेस्ट नहीं करते जब तक। सो इट प्रोवाइड बेस ऑफ रिसर्च एंड देन इट प्रोवाइड्स एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस इज के ये नंबर्स की फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करता है। सो विच मीन्स इट कन्वर्ट्स qualitative ideas into objectivity. Okay, so which is better for reliability. And then econometrics makes data speak. It's like there's you have no opinion. It's like you have no importance, your opinion has no importance. So when you say okay, data says there is a relationship between the value of US dollar and oil prices internationally, then it is more worthwhile as compared to when you say Aslam says, yeah, I believe that there is a relationship between US dollar value and oil prices. Then it is not important because I'm nobody. Okay, but if data is saying, then that is the thing which has happened already. So data speaks, econometrics makes data speaks. And then from idea to forecasting, uh, we basically convert idea into forecasting. We try to do forecasting in econometrics, which is sometimes our basic objective. Okay, we want to do forecast in some relationship, and on the basis of those forecasts we want to make decision making. So these are the reasons due to which every researcher must study econometrics. Okay, then we have this methodology of business econometrics. So, business methodology of business econometrics is a step-by-step process in which, first of all, first step is creation of a statement of theory or hypothesis. First of all, we have a research question. Okay, we have a research problem. Okay, or we have to test a theory, or we have to test a hypothesis. If we have a research problem, a research question, then there are hypotheses. Okay, hypotheses are basically the expected solutions of your problem, of your research problem. These are the things which are not verified yet. Okay, so at first step, we try to identify research questions and then try to build up hypothesis. And hypothesis is the expected solution of our research problem, but it is not verified yet. So our aim of the study normally must be to verify those hypotheses, to test those theories. Okay, to test hypotheses on the basis of data. So this was our first step. We have research problem, then we have expected solution, which we convert into hypothesis. And hypothesis is a statement which is the expected solution of our research problem, but it is not verified yet. Okay, then at second stage we collect data regarding our hypothesis. So data collection is related to the dependent and independent variables of our model. Okay, so we will collect data, and then we have model specification. Model specification is basically the development of a model. Okay, uh, for example, you want to judge के डिमांड जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है, डिमांड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। तो आप वो वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है मार्केट सप्लाई के ऊपर, डिमांड डिपेंड करती है प्राइस ऑफ कमोडिटी के ऊपर, डिमांड डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी के ऊपर, डिमांड डिपेंड करती है इनकम ऑफ पीपल के ऊपर, डिमांड डिपेंड करती है इन्फ्लेशन के ऊपर. सो वी हैव लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स. Okay, so then we have to see the theoretical background
and explanations of what are the variables on the basis of which demand varies in an economy. Okay, so on the basis of those variables, we will make a model in which we have one dependent variable and we have some independent variables. So this is model specification. Identification of dependent, independent, moderating, mediating variables in an equational form is model specification. And then we have model estimation. Model estimation is application of the methodology, application of the statistical tool on data, and the results of that statistical method application. Let's say we have identified model of demand. Okay, demand is dependent on, let's say, price, income, quality, and inflation in an economy. We have four independent variables and one dependent variable in our model. We will collect data from the market. Okay, data of inflation, uh, data of prices of commodity, quality of commodity, and income of people. सो ये डाटा मार्केट से लिया और इस डाटा के ऊपर आपने रिग्रेशन रन की. लेट्स से हमने डिसाइड किया कि जो एस्टिमेशन टेक्निक है मॉडल के ऊपर, दैट वुड बी द रिग्रेशन. ओके, सो आपने रिग्रेशन रन की और रिग्रेशन को रन करके आपके पास अल्फाज एंड बीटाज आ गए, विच आर बेसिकली द पैरामीटर्स ऑफ अवर इक्वेशन. सो उन पैरामीटर्स की बेसिस पे जो है वो पैरामीटर्स जो हैं दोज आर बेसिकली द आउटपुट ऑफ अवर स्टैटिस्टिकल टेक्निक. रिग्रेशन को रन किया तो आपके पास पैरामीटर्स आ गए, उसे हम मॉडल एस्टिमेशन कहते हैं. एंड देन परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट. आफ्टर मॉडल एस्टिमेशन उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो अप्लाई करते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो रिग्रेशन रन करने के बाद अप्लाई होते हैं. इस वजह से इनका ऑर्डर जो है वो भी इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में मॉडल एस्टिमेशन के बाद है. जब आप रिग्रेशन रन कर लेते हो उसके बाद फिर आप देखते हो कि डाटा जो है उसके अंदर मॉडल जो है उसके अंदर मल्टीकुलरिटी तो नहीं, उसके अंदर हेट्रोसिगडास्टिसिटी तो नहीं. ठीक है, तो इस तरह के मसाइल जिनकी वजह से आपके जो पैरामीटर्स हैं वो एरनियस हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, वो फोरकास्टिंग सही नहीं कर पाते. तो उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए कि इस तरह का कोई मसला तो नहीं है डाटा के अंदर, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं. इफ diagnostic tests give us go ahead, then basically we test our hypothesis. तो हमारे जो पैरामीटर्स के रिजल्ट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो डिटरमिन करती है कि आपका हाइपोथेसिस विच वाज डेवलप्ड एट योर फर्स्ट स्टेप वो कंफर्म हुआ है, वो एक्सेप्ट हुआ है या वो रिजेक्ट हो गया. और अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो देन आप प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग जो है वो भी कर सकते हैं. फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? लास्ट स्टेप इज फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? वी हैव यूज्ड एन एग्जांपल. For example, if Pepsi want to judge whether is there any relationship between the sales of Pepsi and temperature, तो ये एक जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम है कि क्या कोई रिलेशनशिप है इसमें कि नहीं. आपने हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपर्ट से पता किया तो एक्सपर्ट ने कहा कि टेम्परेचर का कोल्ड ड्रिंक की सेल के साथ एक रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक बढ़ेगी. लेकिन हमने अभी इसे वेरीफाई नहीं किया, तो हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि जी टेम्परेचर का पेप्सी की सेल्स के साथ रिलेशनशिप है. उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन की. डाटा कलेक्शन में हमने टेम्परेचर पिछले 5 साल का, 10 साल का टेम्परेचर का डाटा लिया मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर. और उसके बाद आपने सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो है उसका पिछले 10 साल का वीकली बेसिस के ऊपर डाटा लिया. उसके बाद आपने अपना मॉडल बना लिया कि जी जो सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो सेल्स ऑफ पेप्सी बढ़ेगी. ये हमारी एस्टिमेशन है अभी तक. आपने डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपने ये मॉडल बना लिया एंड देन उसके ऊपर फिर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है विच इज रिग्रेशन वो आप रन करते हो. लेट्स से आपके मुताबिक ये रिग्रेशन जो है दैट इज सूटेबल टेक्निक फॉर योर मॉडल, तो उसके ऊपर आप रिग्रेशन रन कर देते हो और उसके बाद आपके पास इंटरसेप्टर अल्फा एंड बीटा विच इज स्लोप कोएफिशिएंट, ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो आ जाते हैं.
तो इन दो पैरामीटर्स के आने के बाद आप फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, मल्टीकुलरिटी, हेटेरोसिटी, अटल कोरिलेशन, ये टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म करते हो। एंड देन उसके बाद अगर ये टेस्ट जो हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं, ये कंफर्म कर दें कि आपके पिछले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन फिर आप के जो रिजल्ट्स आए थे उनकी बेसिस के ऊपर आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, जब आपके पास रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, विच इज एट फोर्थ स्टेज, मॉडल एस्टिमेशन स्टेज, उस स्टेज के ऊपर जब आपके पास रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, तो उन रिजल्ट्स में या तो इस रिलेशनशिप को जो है वो कंफर्म किया जाता है या इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया जाता है। रिग्रेशन हमें बताता है कि कोई रिलेशनशिप है, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और तीसरी चीज सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंस की बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। और जब आपके पास ये पैरामीटर्स आ जाते हैं, इंटरसेप्ट टर्म और स्लोप कोएफिशिएंट, ये दो पैरामीटर्स हमारी इक्वेशन से जब निकल आते हैं, तो आप इन दो पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर फोरकास्टिंग जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दीज आर अवर methodology of business econometrics, steps in methodology of business econometrics.